रात 8 बजे। Dear children, welcome in your English class. Today I will teach you the third chapter of your textbook Rainbow. As I told you earlier that I have divided this chapter into 3 parts, and today is the third part. Children, today the learning outcome is, students, you will be able to comprehend the text and speak small sentences in your conversation. इस स्टोरी में हमने जो पढ़ा वो ये था कि राकेश कौन था, मुकेश कौन था और राइट चॉइस क्या थी. एक्चुअली you can see the page number 19 of your book. Here two figures are given, and in this figure you can see a small child, and this is Rakesh, this is Mukesh, the main character of the story, and red sari wearing a lady, and she is the mother of Rakesh and Mukesh. Characters के बारे में एक और बात बताना चाहूँगी. On the next page we have this figure. There here is one man, you can see here, and this is Mr. Yadav, the famous electrician of the society, and we have studied in the previous classes regarding this chapter that what was contraction and parts of speech, some text of the story, and actually this is a dialogue, you may call it dialogue, and some thing about the questions and answers, how to frame WH question sentences, and some information regarding word meanings and questions and answers based on the text. And we came to know that Rakesh was very eager and very excited on the day. Which day बच्चों? The day when his examination was going to over, और last day था examination का, so he was very excited. He came to home and was going to the room of his brother. उसी समय क्या हुआ? Mother stopped him to do so because Mukesh was preparing for his board examination. Mukesh is the brother of Rakesh, and board examination में मेहनत करनी पड़ती है. So mother wanted not to disturb Mukesh, and after some time mother called Rakesh and told him to go and call Mr. Yadav, electrician. क्यों? क्योंकि मुकेश के रूम का टेबल लैम्प was not working properly. मुकेश wanted to repair it by himself, but mother ने कहा no, you will have to study और केवल पढ़ाई करो. Meanwhile, Rakesh goes to call the Mr. Yadav, then Mukesh repairs the table lamp by himself. जब मिस्टर यादव आते हैं तो कहते हैं you have an expert in your home, और हमने ये भी जाना था पिछली क्लास में कि मुकेश टॉप द क्लास. अब आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट आई गेव यू सम होमवर्क and you must have done it. मुझे मालूम है. और होमवर्क क्या था? To write a paragraph about what do you want to become, what is your future plan, and to make some words and with the letters of the word announcement. आपने अच्छे से किया होगा. Now we are going to recapitulate the previous text, and here are some questions based on that text. The first one is, why did Rakesh excite? The answer, जिससे आपको पता चलेगा कि स्टोरी में हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं. Rakesh was excited because it was his last day of exam. Why did mother forbid Rakesh
to disturb his brother? The answer is Rakesh's mother forbade Rakesh to disturb his brother because his examinations were not yet over. The next question, what was the name of Rakesh's brother? The name of Rakesh's brother was Mukesh. What thing was not working in the room of Mukesh? As you know, the table lamp. The table lamp in Mukesh's room was not working. Here are some questions which I asked in the second class, and the first one is, what was Mukesh eager to do? मुकेश क्या करना चाहता था, क्या करने के लिए बहुत ईगर था, बहुत उत्सुक था? तो उसका आंसर जो हमने जाना वो ये, मुकेश वॉज ईगर टू रिपेयर द टेबल लैम्प. नेक्स्ट वन इज, व्हाई डिड मदर से सॉरी टू मिस्टर यादव? अब आपने किसी को यदि घर पे बुलाया और उससे कोई काम नहीं करवाया तो रिग्रेट तो करना पड़ता है ना बच्चों, सॉरी बोलना पड़ता है. तो मदर सेड सॉरी टू मिस्टर यादव फॉर द इनकन्वीनियंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मिस्टर यादव से अबाउट मुकेश? मिस्टर यादव said that Mukesh was an expert electrician at home. और who topped the class? जो बड़ा बच्चा है मुकेश, उसके बारे में तो हमने जाना कि he topped the class. So the answer is Mukesh topped the class. Here is the text which we are going to read now. So listen to me carefully and try to repeat after me, so your pronunciation will be much better. Mother, now it will be easy for you to gain admission in a good college. Mukesh, mother, I don't want to go to a college. Father, I want to join a course that can help me to take up my hobby as my profession. The next day, he went to the Technical Training Institute with his father. There he gained admission in the course of his choice. A couple of years later, everyone looked cheerful as they walked out of the house. Mukesh had set up a new shop and they were going for its inauguration. At the inaugural ceremony, Mukesh asked Rakesh to come forward and cut the ribbon. Everyone clapped and wished Mukesh good luck. तो हमने ये टेक्स्ट पढ़ा, इसको अब थोड़ा सा हिंदी में भी जान लेते हैं. तो यहाँ स्टोरी में क्या है? एक्चुअली मुकेश टॉप द क्लास एंड उसने क्या कहा कि मैं ट्रेनिंग करूंगा. किस बात से, किस बात की ट्रेनिंग करेगा वो? टू मेक हिज हॉबी एज हिज प्रोफेशन. अपने प्रोफेशन में अपनी हॉबी को यदि कोई कन्वर्ट करता है, देन थ्रू द होल लाइफ ही कैन एंजॉय हिज वर्क. और जिसमें एंजॉय हो उस काम को करने में और भी एंजॉय आता है, मजा आता है. उस चीज को यदि हम अपना प्रोफेशन अपनाते हैं तो कभी भी रिग्रेट फील नहीं करते हैं, कभी हमें स्ट्रेस नहीं होता है, कभी बोझ नहीं लगता है बच्चों. सो नाउ यू कैन सी मदर क्या कह रही है. नाउ इट विल बी इजी फॉर यू. अब ये तुम्हारे लिए इजी, आसान हो जाएगा. टू गेन, क्या प्राप्त करना, एडमिशन इन ए गुड कॉलेज. जब बच्चे के नंबर अच्छे होंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है. बच्चे के नंबर कम होंगे
तो किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। इसलिए बच्चों, आप लोग अच्छे नंबर लाने की हमेशा कोशिश करो। मुकेश फिर क्या कहता है, देखो, मदर कॉमा, ये भी पंक्चुएशन मार्क है। कॉमा का मतलब हमें यहाँ पॉज देना है, हमें यहाँ बोलते समय रुकना है। I don't want to go to a college. I don't, do not को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, जल्दी बोलने में स्किप कर दिया ओ, तो हम इसको जल्दी में जब बोलेंगे तो बोलेंगे I do not नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, I don't want to go to a college, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूं। फादर, फिर देखिए कॉमा, I want to join a course, मैं एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं, कैसा बच्चों, दैट कैन हेल्प मी, जो मेरी हेल्प कर सके, सहायता कर सके, टू टेक अप माई हॉबी, मेरी हॉबी को, एज माई प्रोफेशन, मेरे व्यवसाय में बदलने की। प्रोफेशन में यदि अपनी हॉबी को चेंज कर दिया जाए, जैसा कि अभी हमने जाना था, तो बहुत फायदा होता है। इसी तरह मुकेश ने जब अपनी बात अपने मदर से और फादर से की, तो फिर बच्चों देखिए यहाँ क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, लिटरेचर की नहीं, लिटरेचर जहां साहित्य, यहाँ टेक्निकल मतलब स्क्रू ड्राइवर लेकर के, या फिर उसके जो सूक्ष्म अभियांत्रिकी होती है, और जो हम इंजीनियरिंग करते हैं तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है। वो इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता था, बिजली के काम को जो है भली भांति करना चाहता था, तो उसे कहाँ जाना था, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हमारे यहाँ भी बहुत सारे टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, IIT, NIT, तो इसमें जाने के लिए बच्चों खूब मेहनत करो, और अच्छे से यदि आपका काम है करना चाहते हो कुछ टेक्निकल काम, तो आपको वहां जो ट्रेनिंग मिलेगी वो सबसे उम्दा ट्रेनिंग मिलेगी, सबसे अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी बच्चों। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर, किसके साथ गया, फादर के साथ। देयर ही गेन्ड एडमिशन, वहां उसने पाया, गेन्ड, गेन मतलब प्राप्त करना, और गेन्ड ईडी लगाया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये सेकंड फॉर्म बन गई, तो गेन्ड एडमिशन, उसने एडमिशन प्राप्त कर लिया, इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, जो उसकी चॉइस थी, जो उसकी इच्छा थी, उस कोर्स में उसने एडमिशन पा लिया। अब यहाँ बच्चों अ कपल ऑफ इयर्स लेटर, देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं, कौन से, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें जो चीज लिखी जाती है वो एक एडिशनल जानकारी देती है, किस चीज के बारे में, क्या हुआ उसके बाद। ये जब हम जानकारी देना चाहते हैं एडिशनल, उससे लाइफ से संबंधित या मुकेश से संबंधित जानकारी दी जा रही है, उसके बाद ये 3 डॉट यहाँ लगाए गए हैं, इनको हम इंग्लिश में एलिप्सिस बोलते हैं। एलिप्सिस मीन्स जब हम किसी बच्चे से ये कहते हैं कि फला 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 काम करो, तो हम सारे कामों के नाम तो नहीं गिनाते उनको, हम कहते हैं कि जैसे हम उसको 1 2 3 ही याद करने के लिए दे रहे हैं, छोटा बच्चा है तो हम बोलेंगे से या लर्न 1 2 3 अप टू 100, तो अप टू से पहले जो है हम ये डॉट 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 लगाएंगे, इसको बोलेंगे एलिप्सिस। बोला नहीं जाता है, बट इसका मीनिंग क्लियर होता है कि ये मीनिंग है कि बाद में और इसके आगे आगे आगे। तो कपल ऑफ इयर्स लेटर, एक कपल मतलब होता है जोड़ा, तो कपल ऑफ इयर्स मतलब 2 साल बाद, 2 सालों के बाद क्या हुआ, लेटर, बाद में। तो यहां जो है हम देख रहे हैं कि एवरीवन लुक्ड चीयरफुल, हर एक व्यक्ति लुक्ड चीयरफुल, दिखाई दे रहा था, चीयरफुल मीन्स होता है चीयरफुल, खुश, तो यहां हर एक व्यक्ति खुश दिखाई दे रहा था। एज दे वॉक्ड,
जब वो बाहर आ रहे थे आउट ऑफ द हाउस, कहाँ से, घर से, घर के बाहर आ रहे थे, तो सभी लोग खुश नजर आ रहे थे। तो कोई ना कोई तो सेलिब्रेशन होगा, इसीलिए खुश होंगे। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप। मुकेश ने एक नई शॉप, दुकान का सेटअप कर लिया था, उसको कन्वर्ट कर लिया था, शॉप को बना लिया था। किस तरह से, उसमें अपने सारे औजार वगैरह जो टूल किट थी उसकी वो रख ली होगी, और अपनी शॉप जिस चीज की भी उसने की होगी तो उससे संबंधित सामग्री उसमें रख ली होगी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और उसके जो उद्घाटन समारोह के लिए ये सारे लोग जा रहे थे। कौन कौन, राकेश, मुकेश, मदर एंड फादर, और भी लोगों को बुलाया होगा, वो भी पहुंचे होंगे एट द इनॉग्रल सेरेमनी। और उद्घाटन समारोह में, सेरेमनी मीन्स समारोह, तो उद्घाटन समारोह में मुकेश आस्क्ड राकेश, देखो मुकेश को अपने भाई से बहुत प्यार था, तो उसने कहा, मुकेश ने राकेश से, टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए, ठीक है बच्चों, एंड कट द रिबन, और कहा रिबन कट करो। जब उद्घाटन करते हैं तो उस पे जो है रिबन लगा होता है, दुकान में रिबन लगा हुआ था, उसको कट करके एंटर दुकान के अंदर किया जाता है जब किसी दुकान का उद्घाटन होता है। तो मुकेश ने राकेश को बुलाया और कहा कि कट द रिबन। एवरीवन क्लैप्ड, और सभी ने तालियां बजाई। एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और सभी ने विश किया मुकेश को, क्या चीज, गुड लक, अच्छा आने वाला भविष्य, खूब तरक्की करो, हम लोग कहते हैं ना। तो सभी लोगों ने विश्ड मुकेश गुड लक। तो हमने यहाँ पर अपना ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है, टेक्स्ट को पढ़ लिया है। इसमें आपने ये जाना कि दो भाई थे, राकेश एंड मुकेश। मुकेश was preparing for the board examination. Rakesh was his younger brother, and Mukesh wanted to become a good electrician. और अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदला उसने, टॉप्ड हुआ क्लास में। इसके बाद उसने एडमिशन लिया टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, एंड सेटअप की अपनी एक शॉप, और उद्घाटन किससे करवाया, अपने भाई से। इस तरह से यहां हमने सक्सेस स्टोरी पढ़ी, द राइट चॉइस। क्वेश्चंस एंड आंसर्स बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन is given here. Why did the parents not want to disturb मुकेश? मुकेश को डिस्टर्ब क्यों नहीं करना चाहते थे पेरेंट्स? इसका आंसर है, मुकेश was preparing for his board examination. Therefore, the parents did not want to disturb मुकेश. इसलिए मुकेश के पेरेंट्स जो है मुकेश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो बोर्ड की तैयारी कर रहा था। The next question is, why did mother call the electrician? Here the answer is, electrician को क्यों बुलाया गया था? The table lamp of Mukesh room was not working. To repair it, the mother called the electrician. The next question is, what was Mukesh eager to do? Answer is, Mukesh was eager to use his electrical tool kit to repair the table lamp. Next question is, what type of course did Mukesh want to take up? The answer is, Mukesh wanted to join a course that could help him to take up his hobby as his profession. Next question is, name the institute in which Mukesh got admission. Here the answer is, Mukesh got admission in Technical Training Institute. Here the last question, why is it necessary to take the right decision at a right time? It is necessary to take the right decision at a right time because it leads to success. A wrong decision taken up at a particular time can result in ruining the future. हाँ बच्चों, सही समय पर सही निर्णय लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है
रॉन्ग डिसीजन हो जाता है तो क्या होता है बच्चों? रिजल्ट इन रूइनिंग द फ्यूचर, भविष्य में खराबी आ सकती है। इसके लिए हमें सही समय पर वी शुड ऑप्ट फॉर द राइट चॉइस। सो वॉज द टाइटल ऑफ द चैप्टर। हेयर हु सेड टू हुम, किसने किससे क्या कहा। अब हमने देखा था इन्वर्टेड कॉमास में कुछ कुछ लिखा हुआ था। जब सेंटेंसेस इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाते हैं तो उसका मीनिंग होता है बच्चों किसी भी कैरेक्टर के द्वारा कही गई बात को हू बहू कह देना ही इन्वर्टेड कॉमास में आता है। अब यहाँ जो फर्स्ट है वो है राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। ये किसने कहा था? राकेश को किसने मना किया था? यस, यू आर राइट चिल्ड्रन, मदर। मदर ने राकेश से कहा, क्या कहा? कि आप वहां मत जाओ। मदर टू राकेश। नेक्स्ट वन इज मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। क्या मुकेश अपने आप इसको ठीक नहीं कर सकता? ये किसने कहा? हाँ, हम जानते हैं, ये जो है राकेश ने अपनी मदर से कहा। राकेश टू हिज मदर, ओह मदर लेट मी ट्राई, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। ये किसने कहा था? ये तो मुकेश ने कहा था, क्योंकि ही वांटेड टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। मुकेश टू मदर, I am sure Mukesh must have done it. You already have an expert electrician at home. ये किसने कहा? अरे यहाँ कैरेक्टर देखिए आप, इसमें मिस्टर यादव बने हैं। मिस्टर यादव ने ये बात कही थी मदर से कि आपके घर में खुद ही एक एक्सपर्ट है। तो मिस्टर यादव टू मदर, यहां हमने जाना कि किसने किससे क्या कहा, तो दिमाग में स्टोरी हमारे रच बस गई। हम जान गए काफी अच्छी तरह से कि इस पाठ में क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट इज कंजंक्शंस एंड टाइप्स। बच्चों, कंजंक्शंस क्या होते हैं? हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पिछली कक्षा में जाना था कि इसके 8 पार्ट्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड प्रीपोजिशंस। आज हम जानेंगे कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस कनेक्ट्स टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। सेंटेंस फ्रेजेस भी हो सकते हैं। इन सेंटेंसेस को, वर्ड्स को और क्लॉजेस को जो शब्द जोड़ता है उसे हम इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं बच्चों। अब यहाँ उसके टाइप्स दिए गए हुए हैं, आप देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज एंड द थर्ड वन इज। द फर्स्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस and correlative conjunctions. So there are 3 types of conjunctions. आज हम coordinating conjunctions के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ लिखा है fan boys। F से for, A से and, N से nor, B से but, O से और, Y से yet, S से so। Here you can see these coordinating conjunctions are given for, and, nor, but, or, yet and so. So the numbers are 7, and here the meaning of these coordinating conjunctions are given. For means because, and means in addition to, nor means and not, but means however, or means either, yet means but, so means therefore।
अब हम इनका यूज कैसे करते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने में। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। दे टुक मी टू हॉस्पिटल। क्यों ले गए हॉस्पिटल? फॉर आई वॉज वेरी सिक, क्योंकि मैं बहुत बीमार था। इन दो सेंटेंसेस को हमने जोड़ा फॉर से। द नेक्स्ट वन इज 2 and 2 make 4। 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 को हमने जोड़ा एंड से। इसी तरह हम ये कह सकते हैं, जैसे दो सेंटेंसेस हैं, मोहन गोज टू मार्केट एंड सीता गोज टू मार्केट। तो हम दो सेंटेंस क्यों बोले? इंग्लिश में हम बोल सकते हैं मोहन एंड सीता गो टू मार्केट। नीदर ही रीड नॉर डज ही लेट मी रीड। ना तो वो खुद पढ़ती है ना मुझे पढ़ने देती है, ना तो वो खुद पढ़ता है ना मुझे पढ़ने देता है। तो जब हम ऐसे यूज करते हैं तो नॉर का प्रयोग यहाँ हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया है। He passed but his sister failed. I will eat either a dosa or bada with sambar. The examination was easy yet lengthy. It was still raining, so I dropped the idea to go out. We will meet again in the next class. Stay safe, stay healthy. Thank you. आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ रुपए के